everybody, welcome back to the another video. I hope you people are doing well. तो जैसा कि आपको पता है कि गेट का रिजल्ट आ गया है और आप सब ने रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। हालांकि कुछ लोगों का रिजल्ट मेरे को पता भी लगा है और कुछ कैंडिडेट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। बट नाउ जिन कैंडिडेट का अच्छा रैंक आया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बट कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका रैंक थोड़ा ज़्यादा आ गया है, राइट। यानी कि उन्होंने जिस हिसाब से तैयारी की थी उसके अकॉर्डिंग उनका रैंक नहीं आया। बिकॉज जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म के साथ करते हैं और सभी इस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं कि थोड़ी भी कमी नहीं छोड़ते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आता है तो कुछ ही कैंडिडेट होते हैं जिनका रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंसिडर कीजिए तो 2.5 लाख के अराउंड कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम लिखते हैं, राइट। उसके बाद जो रैंक आता है, अगर आप 500 टॉप 500 को एक अच्छा रैंक कंसिडर करते हैं तो बहुत ही कम रेशियो है, बहुत ही कम मार्जिन है जिससे कि रैंक आपका अच्छा आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो रैंक आया है उस रैंक के बेसिस पे आप क्या चूज़ करते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हम उस पोस्ट गाइडेंस सेशन की बात करेंगे जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा कि आपका जो रैंक आया है उसके बेसिस पे आपको क्या चूज करना चाहिए। बिकॉज बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं कि आपको नहीं पता होता है कि एनआईटी काउंसलिंग कहाँ होनी है, आईआईटी काउंसलिंग कैसे होनी है, और उस केस में जो अच्छी रैंक होती है, जो मीडियोकर रैंक भी होती है, वो कैंडिडेट भी रह जाते हैं। और जो थोड़ी लोअर साइड की रैंक होती है, लोअर मीन्स जिनकी रैंक थोड़ी ज़्यादा होती है, वो लोग अपना बाजी मार जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अपडेट एंड have an eye on all the IIT's form and all the PSU's form whichever are suiting to you. Before moving forward, let me tell you about the free subscription provided by Unacademy. If you apply for the 12-month plus subscriptions, Unacademy gets you 3-month free benefits. And at the same inline, if you apply for the 24 months GATE and ESC plus subscriptions, Unacademy gives you 4-month extra benefits. The offer is valid till 24th of March and you can use my code as Amrendra10 in order to get these benefits. The price of these batches are going to be hike in couple of the days. So if you want to get 12-month subscription or 24-month GATE and ESC subscription at the lowest ever price, you can subscribe to their batches right now. Unacademy brings up new benefits for their plus and the iconic learners. You can now access for the well curated notes for the GATE and ESC. All of these notes will be available on Unacademy Learner app, which can be accessible anywhere at any time. I will leave the link in the description from where you can access the notes for the GATE and ESC if you have Plus or the Iconic subscriptions. Unacademy launches new batches for the Mechanical Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering, Computer Science and Technology, ECE and Chemical Engineering. All of the batches are starting from 23rd of March and will be in bilingual language. You can find the link in the description and you can use my code as Amrendra10 in order to get additional discount. Unacademy is conducting GATE and ESC combat test in all of the branches. The exam will be on 27th of March at 11 am. Here you get an opportunity to win a scholarship up to 100%. You can find the link in the description in order to apply for the test, and based on the result you can get the discount for the Plus or the Iconic subscriptions. Now you can access the interview of the GATE 2022 toppers which was taken by top Unacademy educators. इतना कम टाइम में, मतलब कॉलेज में 4th ईयर के साथ साथ तुमने इतना अच्छा रैंक कैसे हासिल कर लिया? मतलब किस तरह से तुमने स्ट्रेटेजी लिया था? क्या तुमको ऐसे लगता था कि मैं इतना अच्छा रैंक लेके आऊँगा? सर इतना अच्छा हो जाएगा ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। नाउ कमिंग टू द मेन कंटेंट, अब बात करते हैं कि आपकी जो रैंक आई है उसके बेसिस पे आपको क्या मिलने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है तो आपको पीएसयू मिल सकता है। आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा आई है तो आपको आईआईटी से एमटेक मिल सकता है, जो ओल्ड आईआईटी की मैं बात कर रहा हूँ। और थोड़ी आपकी अगर ज़्यादा रैंक आती है तो आपके न्यू आईआईटी और एनआईटी भी है जहाँ से आपको एमटेक करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अब बात करते हैं कि पहला केस कि अगर आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक बिलो 250 है, दैट मीन्स इफ़ यू आर मैनेजिंग टू गेट रैंक बिलो 250, राइट। तो उस केस में आपको जो पीएसयू में सिलेक्शन होने के चांसेस है काफ़ी अच्छे हैं। दैट मीन्स इफ़ यू आर गेटिंग रैंक अप टू 250 देन यू आर हैविंग ए गुड नंबर ऑफ द चांसेस दैट यू विल बी गेट सेलेक्टेड इनटू द टॉप पीएसयू।
तो पीएसयू में आपका ओएनजीसी आता है, आईओसीएल आता है, एनटीपीसी आता है और पावर ग्रिड है। तो जो भी बड़ी बड़ी पीएसयू हैं जो अभी रिक्रूटमेंट कर रही हैं और जो छोटी भी पीएसयू हैं जो रिक्रूटमेंट कर रही हैं, तो आपके किसी पीएसयू में फिट होने के चांसेस अच्छे हैं अगर आपकी रैंक 250 से कम है तो। बट यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी रैंक 250 आ गई है, वो काफ़ी अच्छी रैंक है, 250 के अंडर में आपकी रैंक आ गई है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, राइट। आपको अपने हिसाब से एक एक इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्म करना है, बिकॉज इफ़ यू सी इन टुडे सिनेरियो कुछ प्रेडिक्टेड नहीं है कि अगली पीएसयू कौन सी होगी जो रिक्रूट करेगी, राइट। तो इससे इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हो उसमें अपना बेस्ट दे के आइए, और हो सकता है कि आपकी रैंक अगर 250 से 260 भी है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, राइट। सो इफ़ यू आर हैविंग रैंक अप टू 250 देयर इज अ गुड चांसेस टू गेट selected into PSU, but at the same point of time you have to keep in your head that while going into the interview you have to mug up all the formulas and all the concept that you have done in the exam, right। तो आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ के जाने हैं, जो थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो पढ़ के जाने हैं, और एक इंटरव्यू के लिए जो सेशन होते हैं आप उनको अटेंड कीजिए। जो भी इंटरव्यू सेशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के, अनअकैडमी के, उनको अटेंड किए। वो क्या होता है कि आपको एक मोल्ड कर देंगे उस तरीके से कि आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है इंटरव्यू पैनल के सामने। सो उससे क्या होगा कि अगर आपका रैंक थोड़ा अपर साइड में भी है, यानी कि 260 270 भी है, बट इफ़ यू प्रेजेंट इन ए गुड वे एंड इफ़ यू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय द इंटरव्यू पैनल, देन आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। सो ये सभी के लिए रिकमेंडेड है, चाहे रैंक 10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, 100 हो, कि आपको इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। अदरवाइज आपकी टॉप 10 टॉप 100 में रैंक होते हुए भी यू मे नॉट गेट इनटू द कोर ब्रांच ऑफ द ओएनजीसी विच यू वांट, लाइक मटेरियल मैनेजमेंट और द मैकेनिकल इंजीनियरिंग और द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, राइट। सो यू हैव टू मग अप ऑल द थिंग्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ एज पर द इंटरव्यू, राइट। अब एग्जाम के मोड से बाहर आके थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोचिए और उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में सोचिए और उन चीज़ों को पढ़िए। लाइक जैसे प्रीवियस इंटरव्यू हुए हैं उठ के उसके इंटरसेप्ट आते हैं तो उनको पढ़िए कि पिछले इंटरव्यू में लोगों से क्या क्या पूछा गया था। काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको इंटरनेट पे या फेसबुक पे, मेरी फेसबुक पे भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप उस पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसमें जो प्रीवियस इंटरव्यू में लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए और अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड कीजिए कि आप इंटरव्यू में जाएँ तो अपने आप को एक बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, यानी कि अगर आपका रैंक 250 से 500 के बीच में आया है, इफ़ यू आर गेटिंग रैंक ऑल इंडिया रैंक 250 टू 500, राइट, तो उस केस में चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लगभग 50-50 चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है उसके केस में काफ़ी कम वैकेंसी हैं जो रिक्रूट हो रही हैं गेट के थ्रू। बहुत सारी पीएसयू पुल्ड आउट हो गई हैं। तो उसके लिए एक पहले का जो टाइम था 2018 में 19 में, उस टाइम पे चांसेस अच्छे होते थे इफ़ यू आर गेटिंग रैंक अप टू 400। बट अभी क्या हो गया है, काफ़ी कम वैकेंसी होने की वजह से आपके जो चांसेस हैं 250 से 500 में 50-50 चांसेस हैं। ओके, यू मे गेट द पीएसयू, यू मे नॉट गेट द पीएसयू। ये जो स्टेज है काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। क्रिटिकल मीन्स कि आपका 300 रैंक आया, 350 रैंक आया, राइट, आपके चांसेस हैं अभी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके ऊपर 350 और भी लोग हैं, और भी कैंडिडेट हैं जो सेम इंटरव्यू, जो सेम एग्जाम दे के आए हैं और सेम इंटरव्यू वो देने वाले हैं, राइट। तो आपके ऊपर वो 350 लोग हैं जिनका गेट स्कोर आपसे बेटर है। बट 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 यहाँ एक ट्विस्ट है कि अगर आप प्रिपेयर अच्छे से करते हैं, फॉर एग्जांपल ओएनजीसी में भी 15 मार्क्स का इनका इंटरव्यू रहता है। तो अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, 14 मार्क्स स्कोर करते हैं, और कोई कैंडिडेट है जिसका रैंक 200 है या 150 है और उसके मार्क्स 11 आते हैं, तो उस पॉइंट पे आप थोड़ा बाजी मार सकते हैं। तो अगर आपका रैंक ऐसा नहीं है कि आपका रैंक 250 से थोड़ा ऊपर आ रहा है या 300 से ऊपर आ रहा है, तो आपके चांसेस जीरो हैं या बहुत कम चांसेस हैं। चांसेस कम हैं बट चांसेस हैं, राइट। और आप अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल में 85% वेटेज होता है गेट स्कोर का। बाकी जो 15% वेटेज होता है वो होता है आपकी परफॉर्मेंस का, कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया है और आपने जीडी में कैसा परफॉर्म किया है। सो इफ़ यू मैनेज टू गेट ए गुड मार्क्स इन जीडी प्लस इंटरव्यू, देन इवन आफ्टर हैविंग द रैंक मोर देन 300 यू आर हैविंग ए गुड प्रोबेबिलिटी टू गेट सेलेक्टेड इन टू द आईओसीएल, राइट। तो बहुत सारी पीएसयू हैं और मोस्ट ऑफ द पीएसयू हैं जिनमें क्या होता है कि
जो कुछ पोर्शन होता है यानी कि 85% 75% जो वेटेज होता है वो गेट स्कोर को देते हैं, बाकी का वेटेज आपकी परफॉर्मेंस को देते हैं या आपके एकेडमिक्स को देते हैं, आपके इंटरव्यू को देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रैंक 300 या 350 आ गई तो नहीं होगा। आप अगर 500 रैंक भी रखते हो, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो इंटरव्यू में, तो आप किसी न किसी PSU में एट द एंड ऑफ द डे सेलेक्ट हो जाओगे, राइट। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है और 500-600 रैंक आने के बाद भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू को फेस करना है। उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, अगर आपकी रैंक 250 से 500 के बीच में आ रही है, यू हैव ए गुड ऑप्शन टू गेट एमटेक एडमिशन इनटू द ओल्ड IIT। ओल्ड IIT मीन्स IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT दिल्ली और IIT मद्रास। सो इन IIT में आपको एक प्योर या कोर आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं या जिनका प्लेसमेंट अच्छा होता है, तो आपकी जो ब्रांच है जो आप चाहते हैं वो ब्रांच इनमें आपको मिल जाएगी। इफ़ यू आर हैविंग रैंक 250 to 500 or below 500, if you are having the rank below 500, then you can get easily admission into the core branch of the old IIT। नाउ अगर आपका रैंक 500 to 1000 के बीच में है, यानी कि 500 से ऊपर अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आता है, तो उस केस में PSU के चांसेस काफ़ी कम है, मिनिमल चांसेस हो जाते हैं। बट यहाँ भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ PSU हैं जो सिर्फ रिक्रूट करती हैं, यानी कि कॉल करती हैं गेट स्कोर के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल NPCIL क्या करता है कि आपको सिर्फ आपके गेट स्कोर के बेसिस पे आपको कॉल करता है, राइट। तो कभी कभी वो 1200 रैंक तक को बुला लेता है, 1500 रैंक तक को बुला लेता है, और उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है, राइट। यानी कि गेट का वेटेज जो है 0% हो जाता है अगर एक बार आपकी कॉल आ गई तो, ठीक है। या BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो क्या होता है, उनका खुद का एग्जाम भी कराते हैं और वो गेट के थ्रू भी कॉल करते हैं, बट जो सिलेक्शन होता है वो टोटली इंटरव्यू के बेस पे होता है। तो अगर आपकी रैंक 1000 के नीचे 800 900 या 1000 के ऊपर भी 1100 1200 रैंक आ रही है और NPCIL और या बार्क आपको कॉल कर रहे हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो टोटली आपके हाथ में है। आपको किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आप जैसा इंटरव्यू में परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो चांसेस यहाँ भी बराबर हैं, राइट। अगर आपका रैंक 500 से ऊपर आ गया है, 800 900 या 1000 आ गया है, तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ चांसेस आपके हैं PSU में या डायरेक्ट जॉब लेने के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि NPCIL है और बार्क है, राइट। और NPCIL का एक और अच्छी चीज़ है कि वो लास्ट के 3 साल के गेट ईयर को वैलिड मानता है, राइट। क्योंकि आपको पता होगा कि जो गेट में सिलेक्शन लेना है PSU में, उसके लिए करंट ईयर का ही गेट स्कोर वैलिड होता है सारी PSU में, एक्सेप्ट NPCIL जो लास्ट के 1 साल और 2 साल यानी कि टोटल 3 साल का गेट का वैलिडिटी देता है, राइट। यानी आपका करंट ईयर और 1 साल पुराना और 2 साल पुराना, ठीक है। तो टोटल 3 साल आपके हैं आपके पास उसको यूज करने के लिए, ठीक है। अब सेम चीज़ IT के एडमिशन के लिए भी है, ठीक है। जो कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि IT में एडमिशन लेने के लिए भी आपको 3 साल का गेट स्कोर वैलिड रहता है, राइट। यानी कि अगर आपके पास गेट 2022 का स्कोर कार्ड है तो आप उसके बेसिस पे गेट 2025 तक यानी कि 2025 के सेशन तक आप एडमिशन ले सकते हो IIT में उस गेट स्कोर के वैलिडेशन पे, राइट। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि PSU में 1 साल का ही गेट स्कोर वैलिड रहता है, यानी कि आपको करंट ईयर के ही गेट स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। बट PSU में आपको पिछले 2 साल यानी टोटल 3 साल का आपका गेट स्कोर वैलिड रहता है, राइट। अब उसके अलावा अगर आपकी रैंक 500 से 1000 के बीच में है तो आपके पास जो ओल्ड NIT हैं, फॉर एग्जांपल NIT तिरची, NIT वारंगल, जिनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, वहाँ से आपको MTech करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इजीली अगर आपकी रैंक 500 से 1000 के बीच में है। अब रैंक की बात आती है कि जो 1000 से ऊपर रैंक है, रैंक आपकी ऊपर आती है तो चांसेस PSU के निल हैं, यानी कि आपका PSU में सिलेक्शन बहुत ही रेयर है। हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं तो बहुत ही कम चांसेज हैं, यानी कि लेस देन 10% चांसेज हैं। PSU हैं जैसे NPCIL और BARC बार्क, जैसे मैंने आपको बताया, जो कॉल कर लेंगी तो आपका इंटरव्यू के वैसे सिलेक्शन हो जाएगा। बट जहाँ पर गेट स्कोर का वैलिडेशन है, जहाँ गेट स्कोर का वेटेज है, उसके केस में आपका अगर 1000 से रैंक आता है अनरिजर्व कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली। आप फिर से तैयारी कीजिए और एक अच्छे स्कोर के साथ अपना रिजल्ट लेकर आइए। नाउ अगर रैंक आपका 1000 से ऊपर आया तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आपको जो न्यू IIT है या जो NIT है जो थोड़ा लोअर साइड में आते हैं, उनमें आपको MTech करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और आपको स्टाइपेंड के रूप में 12,400 रुपये भी मिल जाएंगे, ठीक है। न्यू IIT से मेरा मतलब जैसे कि IIT गांधीनगर, IIT इंदौर, IIT पटना, IIT भुवनेश्वर, तो जो नई IIT है यहाँ से आपको MTech करने की
जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल जाएगी आपका, अगर 1000 से 1500 या 2000 के बीच में भी रैंक आता है तो। I hope you get a better idea that what are the things you may get at your rank, and if you are not having a good rank तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगले साल के लिए तैयारी कीजिए और फुल स्केल में अपनी तैयारी कीजिए। एक अच्छा टाइम टेबल है, अच्छा टाइम है और सब कुछ अभी अवेलेबल है। और क्या टाइम टेबल या क्या स्ट्रेटजी, क्या रोड मैप होना चाहिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। या जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगे, जो आपको सुटेबल है, वो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं और अपने टाइम टेबल में इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो I hope you learned something from this video. If you like the video, subscribe to my channel and hit the like button. Thank you.